Welcome back, all the students. Vidhi, Anya, my best wishes to both of you. You working very hard, and today is a very important topic before you. We have been talking about laws of motion. We told you first law of motion, second law of motion. The force is equal to rate of change of momentum. Then we told you about the third law of motion, which said that to every action there is an equal and opposite reaction. So a force acts on one body, another equal and opposite force is acting on the other body. So every action has a reaction. As we told you students, that there is always an opposing force which is acting when an object is moving, which we talked of the force of friction. And today our lecture is very important and we will be solving important numericals and questions for the exam students. I hope you are enjoying the sessions and your participation has been very good. All of you have participated and answered almost all the questions correctly. So it is good that you work very hard and you are able to interact, answer questions intelligently, and also you are able to score very high percentage of marks in your examination students. So as you can see on the board student, momentum conservation. You know, we have talked with you. I talked with you what is students. Let me take the color of the student. Student, this is coming. Take the black color. Okay. So what we talked with you students, you already know what is momentum. Tell me what is momentum students? What is momentum equal to? What is the formula of the momentum which has been told and you have done with me? What is momentum? Answer immediately. What is momentum? Momentum is equal to product of, yes, Anya, what is the formula of the momentum? So product of The mass into velocity. Correct answer given by Vidhi, mass into velocity students. So momentum, we have told you, is a product of mass and velocity, because it has a, if anything hits you or if you try to push something or apply a force, then there is something which we experienced. This was also given by Newton, uh, that there is a momentum which is mass into velocity students. In the second law of motion he had talked about momentum, and it depends on two things. One is mass, other is the velocity. And momentum, you know, is a vector quantity. It has direction as well as magnitude. It is a vector quantity. What we said about the momentum student? It is a vector quantity. Vector means it has direction and magnitude. Yes or no? yes, sir. So momentum, we have to specify the direction also. If the direction is opposite, the sign will be reversed, and that we will use in our numericals also today. That's why I'm talking of. Now, important point we are trying to say is the law of conservation of momentum student. Conservation of momentum. What is the meaning of conservation of momentum? Here I have talked of conservation of momentum. You see that when two or more bodies act upon one another, I am saying there is a body A, there is a body A students, and there is another body B. There is a body A and there is a body B. ठीक है? Supposing these two bodies act on one another. When body A acts on B, what is happening if it collides with B? Supposing A hits B along the same direction, what will be the result of that student?
A, there is some momentum of A in the beginning, there is some momentum of B in the beginning, and we are saying the momentum is conserved. Or what we are trying to say, that momentum before the interaction must be equal to momentum of the two bodies after the interactions. So here we are going to discuss this, and we are going to derive a formula of also that what we are talking about, the law of conservation of momentum. Total momentum remains constant, students. Momentum before interaction, what I am saying, momentum before interaction, before interaction is equal to momentum after interaction, students. After interaction, the momentum is conserved, students. It can neither be created nor be destroyed. So momentum is neither created nor destroyed. It has to be conserved. It remains the same what it was before the collision and after the collision. In other words, if I hit one object, then supposing it transfers its momentum to the second object. The second will move faster, first will become slower. But the sum of the two, total momentum before will always be equal to total momentum after, students, if no external force is acting. That's important point. If no external force is acting. If no external force is acting, students, that means I am not applying any force from outside. In such conditions, students, the momentum before and after collision will be the same. That is what we call as conservation of momentum. समझ में आया मैंने क्या बोला? जल्दी बोलो, yes or no. Yes, sir. कि टोटल मोमेंटम बिफोर collision और आफ्टर collision सेम रहेगी, स्टूडेंट्स, if no force external has been applied to the collisions. तो कोई बात नहीं. अब हम व्हाट वी आर सेइंग, वी हैव, सपोजिंग वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स हियर, स्टूडेंट्स. मान लो दो बॉल्स हैं मेरे पास. हियर आई एम अज्यूमिंग आई हैव ए बॉल ए. देख रहे हैं, ये मेरे पास एक बॉल है, स्टूडेंट्स, और दिस इज अनदर बॉल. व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज द, आई एम सेइंग देयर आर टू बॉल्स, स्टूडेंट. व्हाट आई हैव टू बॉल्स, and I am saying MA is the mass of body A. If you can say it body, ball, or any object, mass of A. So MA is the mass of body A. MB is the mass of, you can say, body B or ball B, hardly matters, same things. Supposing UA is the velocity of A. UA is the velocity of A, students. Initial velocity, I'm saying initial velocity. ठीक है? And UB is the initial velocity of object B or ball B. Then tell me what will be the momentum of ball A, students. What is the initial? I'm talking of initial momentum. What will be the initial momentum of object A, students? बताइए, what will be the value of momentum of A? फार्मूला क्या बताया था तुमने मुझे? मास इनटू वेलोसिटी. तो व्हाट विल बी दैट? मास ऑफ ए इनटू यू. बोलो, मैंने सही लिखा या गलत लिखा? जल्दी बताओ. इनिशियल Yes, मोमेंट. Yes, sir.
तो मैं लेट मी कॉल इट पी ए। अब पी ए जो है दैट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। देन आई एम सेइंग लेट मी फाइंड द इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी। तो ऑब्जेक्ट बी, what is the momentum of object B initial, what is the mass mb, initial velocity u, ठीक है। what is the total initial momentum students? So total momentum before interaction, total momentum before interaction कितना हो गया स्टूडेंट्स? पी ए प्लस पी बी। तो पी ए प्लस पी बी कितना आया स्टूडेंट्स? यू विल ऐड द टू, ये दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड कर देते हैं स्टूडेंट। एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ठीक है। तो ये आपकी टोटल मोमेंटम है बिफोर दे कोलाइड। यहां पर ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सो द टोटल मोमेंटम इज गिवन बिफोर कोलिजन, बिफोर इंटरेक्शन। जब वो इंटरेक्ट नहीं किए तो उनकी मोमेंटम ये है। और लेट मी से दैट आफ्टर इंटरेक्शन स्टूडेंट्स, मान लो इंटरेक्शन हो गया। कैसे इंटरेक्शन हुआ यहां पर स्टूडेंट्स? कि ये बॉल भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये इससे के साथ टकरा गई। द बॉल ए कोलाइड्स विद बॉल बी एंड दे आर बोथ मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। हियर स्टूडेंट हमने दिखाई है डायरेक्शन, ये बॉल ए बी को हिट कर रही है। क्या कर रही है? बॉल ए इज कोलाइडिंग विद बॉल बी। तो जो ए है स्टूडेंट वो कोलाइड कर रहा है किसके साथ? बी के साथ। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। तो टेल मी आफ्टर कोलिजन क्या होगा? इनकी वेलोसिटी सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? जल्दी बोलो, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यस और नो? तो मान लो वी ए और वी बी जो है, दीज आर द वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी आफ्टर इंटरेक्शन। तो इंटरेक्ट होने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई। कितनी बन गई फिर? एक की वी ए, दूसरे की वी बी। क्या बन गई? वी ए और वी बी, ठीक है। तो फिर जो मोमेंटम बनेगी स्टूडेंट आफ्टर इंटरेक्शन वो क्या होगी? मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन क्या बनेगी? मैं इसको कह रहा हूं पी डैश टी। तो ये मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन है, ये क्या होगी? अब इसका प्रोडक्ट, मास तो सेम है, मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो सेम है। अब वेलोसिटी चेंज हो गई है, वी ए प्लस एम बी इंटू वी बी। तो ये मोमेंटम है बिफोर इंटरेक्शन स्टूडेंट्स, और दिस इज माय मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन। बोलो मैंने ठीक लिखा गलत लिखा? जल्दी बोलो, पहले यहां तक समझ आया? Yes, sir. ये मैंने क्या लिखा कि ये दो बॉल्स हैं, देखो बॉल ए है और बॉल बी है स्टूडेंट। लो इसको कलर दूसरा ले लेता हूं, ठीक है। यहां पर देखो मेरे पास ए है बॉल, ये मेरे पास बी है स्टूडेंट। ये बिफोर कोलिजन है, इसकी वेलोसिटी कितनी है बिफोर कोलिजन? इसकी वेलोसिटी कितनी है? यू ए। और वेलोसिटी कितनी है इसकी बिफोर कोलिजन? यू बी, जो ये मैंने फार्मूले में यूज की। बिफोर कोलिजन ये मोमेंटम है इनकी। अब एन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, देख रहे हैं हमें यहां से यहां जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? एक ही डायरेक्शन में स्टूडेंट ये जा रहे थे। अब क्या हुआ? जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं स्टूडेंट्स तो क्या होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में ये कोलाइड कर रहे हैं, तो इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी कोलिजन के बाद। तो वो आफ्टर कोलिजन मैंने यहाँ लिखा है। आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? वी ए, और इसकी कितनी हो गई? वी बी। तो वेलोसिटी चेंज हो गई दोनों की कोलिजन के बाद। मास तो सेम ही रहेगा, बोलो यस और नो? मास तो चेंज नहीं होता, तो मास इनका सेम है। तो फिर फाइनल मोमेंटम मैंने निकाली है और इनिशियल मोमेंटम निकाली है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने क्या बोला
बताओ व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जल्दी बताओ व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टूडेंट्स, क्या बोलता है? व्हेन वन बॉडी इंटरेक्ट्स विद अनदर बॉडी the force is exerted by one body on the other. Similarly, the other body also exerts equal and opposite force on the body. बोलो yes or no? इसको क्या हमने बोला था? एक्शन एंड रिएक्शन. अकॉर्डिंग टू, मैं ये कह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ए विच आई एम कॉलिंग FAB. तो ए ने बी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट की है, उसका क्या नाम है? FAB. और बी ए के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा विच विल बी इक्वल एंड अपोजिट. स्टूडेंट्स बोलो यस और नो, जल्दी बताओ. FAB क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी. माइनस FB क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए. माइनस क्यों लिखा? टेल मी, माइनस क्यों लिखा? माइनस क्यों लिखा स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर? क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, अपोजिट में है. तो हमेशा एक एक्शन होती है तो रिएक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है. यस और नो बोलो. इसी को थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताया था मैंने. बोलो Yes, सही sir. लिखा गलत लिखा? बताओ विधि, मैंने ठीक बताया गलत बताया? Yes, sir. तो एक ए ने बी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट की है, उसको मैं कह रहा हूं FAB. और बी क्या करेगा? ए के ऊपर एक फोर्स लगाएगा इक्वल एंड अपोजिट, उसको मैंने बोल दिया FBA. तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? वो कह रहा है कि जो फोर्स ए और बी के एक्सर्ट हुई है वो इक्वल है टू द बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू बी. इसीलिए मैंने लिखा, क्या लिखा फिर मैंने यहाँ? FAB इज इक्वल टू माइनस FBA. इसको क्या बोलते हैं? थर्ड लॉ ऑफ मोशन. बोलो यही था थर्ड लॉ ऑफ मोशन. बोलो यस और नो स्टूडेंट्स. मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहो, मेरे साथ क्वेश्चन आंसर करते रहो. आप जितना बोलोगे उतना ही जल्दी लर्न करेंगे हम. बोलो, खूब बोलो, खूब क्वेश्चन पुटअप करो, खूब बातचीत करो मेरे साथ. ठीक है, आप बताओ मैंने सही लिखा? Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड. एनर्जी देखो, हमारी एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए. जब हम लेक्चर पढ़ा रहे हैं, एनर्जी लेवल शुड बी हाई स्टूडेंट्स. हमारी एनर्जी होनी चाहिए, हमें नींद आ जाएगी नहीं तो एनर्जी बनाए रखने के लिए मेरे साथ इंटरेक्ट करिए, क्वेश्चन आंसर के जवाब दीजिए. और लाइव लेसन्स हैं, इंटरेक्टिंग. दिस आर लाइव इंटरेक्शंस. तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो और कोई चीज समझ में नहीं आई तो मुझे रोक सकते हो, जल्दी नहीं है. तो बोलो मैंने ये ठीक लिखा? ये कौन सा लॉ मैंने लगाया इस पे? जल्दी बताओ कौन सा लॉ यूज हुआ? विच इज दिस लॉ? न्यूटन्स कौन सा लॉ यूज किया है? बोलो इस लॉ को क्या बोलते हैं? न्यूटन्स कौन सा लॉ बोलते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? जल्दी बोलो कौन सा लॉ यूज हुआ है स्टूडेंट्स? बताओ Sir, कौन सा third लॉ law. यूज हुआ है? विधि, कौन सा लॉ मैंने यूज किया? दिस इज अ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अब फोर्स क्या होती है स्टूडेंट? बताओ. फोर्स, सेकंड लॉ ने क्या बोला था? बट सेकंड लॉ ने क्या बोला था? फोर्स क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन? स्टूडेंट फोर्स क्या होती है? बताओ. सेकंड लॉ ने क्या बताया? फोर्स क्या होती है? फोर्स क्या होती है? फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. बोलो यस और नो. Yes, sir. अच्छी बात है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालते हैं? फाइनल, अगर मास तो सेम है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इनटू मास डिवाइडेड बाय टाइम, वो क्या बन जाएगा? फोर्स. तो फिर मेरी FAB फोर्स का फॉर्मूला क्या बना? FAB, जो ए ने बी के ऊपर फोर्स एक्ट की स्टूडेंट, वो क्या है? तो देखो कि वेलोसिटी कोलिजन हुई है, टू बॉडीज हैव कोलाइडेड विद ईच अदर, टू बॉल्स हैव कोलाइडेड स्टूडेंट. तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है? फाइनल वेलोसिटी VA है, इनिशियल वेलोसिटी UA है. तो फिर क्या हुआ है? तो VA माइनस UA. यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है. ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट बिफोर कोलिजन. ये इनिशियल वेलोसिटी है. ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी है स्टूडेंट. फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन. तो ये फाइनल है हमारी वेलोसिटीज.
तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है, वी ए माइनस यू ए, किसकी, ए की, और v की चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है, वी बी माइनस। तो यहां पर हमने आपको दिखाया है कि चेंज इन वेलोसिटीज कितनी हुई है। तो फिर जो फोर्स इंटरेक्ट हुई है ए की, जो ए की फोर्स है, इंटरेक्शन फोर्स है स्टूडेंट, बी के ऊपर जो लगी है वो कितनी लगी है, एफ ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, मास ऑफ ए फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम। बोलो मैंने ठीक लिखा गलत लिखा, एफ ए बी। तो एफ ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, मास ऑफ ए फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम। बोलो ये आएगा एफ ए बी, ठीक है, यहां पे ये हमने लिखा एफ ए बी। और एफ बी ए क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो बी ए के ऊपर एक्ट करेगा स्टूडेंट। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी, ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी है स्टूडेंट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी है डिवाइडेड बाय टाइम इनटू मास। तो बोलो मैंने ठीक लिखा ये फार्मूला, ये जो मैंने लिखा है ये सही है, बोलो। Yes, sir. तो ये न्यूटन हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमने एक फार्मूला बना लिया कि ए, जो ए ने बी के ऊपर फोर्स एक्ट की है उसे मैंने एफ ए बी बोला स्टूडेंट, और जो बी ने ए के ऊपर फोर्स एक्ट की है उसे मैंने एफ बी ए बोला। इसका साइन अपोजिट हो गया, देख रहे हैं, ये प्लस है तो ये माइनस है। तो यहाँ पर ये एक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स है। तो एक्शन और रिएक्शन के साइन अपोजिट इसलिए हैं क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक समझ में आ गया, बोलो। Yes, sir. तो आपने ये बताया कि एक बॉडी दूसरे बॉडी से कोलाइड कर रही है स्टूडेंट, क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है। जब वो बॉडी कोलाइड करेगी तो ए जो है बी के ऊपर एक फोर्स डालेगी विच इज एफ ए बी, और जो फोर्स बी ए के ऊपर लगाएगी दैट इज एफ बी ए। तो वन इज अ फोर्स ऑफ एक्शन, अदर इज अ फोर्स ऑफ रिएक्शन, both are equal and opposite, that is why we have written this formula। ये फार्मूला बन गया हमारा आपके सामने, ठीक है। अच्छा फिर आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं। अब आपने एक फार्मूला बना लिया स्टूडेंट्स, क्या फार्मूला मैंने बनाया, मैंने कहा कि ये एक बॉडी थी ए और एक बॉडी थी बी, ये इसके साथ कोलाइड कर गई, ये दोनों एस डायरेक्शन में जा रहे थे। तो फोर्स ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बी ऑन ए। इसको हम बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसी को बोला मैंने थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका तुमने कहा कि मास ऑफ ए जो है, मास ए का, और वेलोसिटी कितनी है, वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाय टाइम। और इसका फार्मूला क्या बनाया तुमने, माइनस मास ऑफ बी है स्टूडेंट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी बाय टाइम। बोला मैंने ठीक लिखा गलत लिखा, जल्दी बताओ, कोई मैंने मिस्टेक तो नहीं की, जो फार्मूला पीछे बताया था उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की, बताओ जल्दी दो, टेल मी। आने, इज इट करेक्ट? No, sir. करेक्ट है? Yes, sir, it is correct. अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी। तो मैं क्या करता हूँ, टी से टी काट देता हूँ, कट जाएगा, बोलो काट सकता हूँ। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर क्या बनेगा, एम ए इंटू वी ए माइनस एम ए इंटू यू ए इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आया, माइनस एम बी इंटू वी बी प्लस एम बी इंटू यू, ठीक है, ये आ गया। अब माइनस वालों को प्लस करने के लिए क्या करता हूँ, तो ये देख रहे हो, ये माइनस है, एम ए प्लस वी ए है, और ये एम ए माइनस यू ए है। तो एम ए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको उधर ले जाऊँ और इसको इधर ले आऊँ, ये माइनस वाला इधर ले आऊँ और ये माइनस वाला दूसरी साइड ले जाऊँ, तो क्या बन जाएगा फिर,
क्या बन जाएगा स्टूडेंट? ये बन जाएगा एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू वी वी इज इक्वल टू एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी। बोलो मैं ठीक किया या गलत किया? कुछ गलती तो नहीं की? बोलो कुछ गलती Yes, तो sir. नहीं की? ठीक है. तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये है टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन। दिस इज द टोटल मोमेंटम स्टूडेंट आफ्टर कुलियन। और ये क्या है? यूए और यूबी तो इनिशियल वेलोसिटी थी। टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन। टेल मी एम आई राइट और रॉन्ग? वो तो मैंने ठीक लिखा या गलत लिखा? ये कुलियन से पहले थी बिफोर और ये क्या है? आफ्टर। तो मोमेंटम दोनों टाइम सेम रही स्टूडेंट? यस और नो? बोलो। ये दो Yes, चीजें थी, sir. दो बॉल्स दे कोलाइड विद ईच अदर, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। इनकी इनिशियल वेलोसिटी तुमने बोली यू यू ए और यू बी। और आफ्टर कुलियन क्या हुआ? आफ्टर कुलियन क्या होगी? इनकी वेलोसिटी तुमने कहा चेंज हो गई सर। कितनी कितनी हो गई? वी ए और वी बी। तो ये फार्मूला मैंने ठीक बनाया कि नहीं? जल्दी बताओ, कोई मिस्टेक तो नहीं की मैंने? बोलो एक फार्मूला बन गया। Yes, sir. ये क्या शो कर रहा है? टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन। इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमने क्या प्रूव किया स्टूडेंट्स? मैंने क्या प्रूव किया है कि चलो एक और अच्छा कलर ले लेते हैं। तो मैंने क्या प्रूव किया है? ये फार्मूला में क्या प्रूव हुआ स्टूडेंट्स? बोलो। ये मैंने इसको मार्क कर लिया है। तुम भी अपने नोट्स में कितने कलर पेन यूज कर रहे हो? बताओ कितने कलर पेन्स हैं तुम्हारे पास? हाउ मेनी कलर पेन्स यू आर यूजिंग स्टूडेंट्स? बताओ कितने कलर पेन है तुम्हारे पास? कितने हैं? एक ही है क्या? नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे? नोट्स बना रहे हो? आई कैन नॉट सी योर नोट्स बट यू हैव टू टेल मी, आर यू मेकिंग नोट्स? Yes, sir. तो कलर्ड पेन से फार्मूला मार्क कर लो, ये यूज होने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में। अभी न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। दिस फार्मूलाज विल बी एप्लीकेबल स्टूडेंट्स। यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, यही प्रूव हमने कर दिया यूजिंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को ही बोलते हैं स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमारी लाइफ में मोमेंटम कंजर्व्ड है। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, बॉडीज कोलाइड करेंगी तो उनकी मोमेंटम बिफोर कुलियन आफ्टर कुलियन सेम होगी स्टूडेंट्स। एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है, बहुत सारी चीजें हैं, चार्ज भी कंजर्व्ड होता है, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है। सारी चीजें लॉज ऑफ कंजर्वेशन थर्मोडायनामिक्स में भी हम यूज करेंगे। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन ट्रांसफॉर्म किया जाता है वन फॉर्म इनटू अनदर। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। मोमेंटम ट्रांसफर तो हुई, एक बॉल की स्पीड बढ़ गई, एक की कम हो गई कुलियन के बाद, लेकिन टोटल दोनों की सेम रही। ये कह रहे हैं टोटल दोनों की सेम रही। तो ये फार्मूला तुमने पूरा नोट कर लिया स्टूडेंट्स? बोलो पिछला भी नोट कर लिया था जो मैंने पिछला पेज दिखाया था? ये सारा नोट कर Yes, लिया sir. तुमने? बोलो नोट हो गया सारा? बोलो Yes, यस। sir. अच्छा, और ये जो अब किया है इसको भी नोट कर लो। ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो पूछेगा डिराइव द फार्मूला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ पे हमने फार्मूला डिराइव कर दिया।
क्या कर दिया, फार्मूले को डिराइव कर दिया स्टूडेंट्स। अब मैंने फिर वापस ले लिया ब्लैक कलर। अब एग्जाम्पल्स बताने हैं स्टूडेंट्स, कोई एग्जाम्पल आप बताओ। अब कह रहे हैं एग्जाम्पल्स बताओ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपको कोई एग्जाम्पल पता है तो बता दो। एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताओ, कोई एवरीडे लाइफ में ऐसा एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल पता है? वो कोई एग्जाम्पल पता है तो बता दो। डू यू नो एनी एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टूडेंट्स? बोलो, कोई एग्जाम्पल आपके पास है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, बताओ। No, sir. अरे तुम्हारे सामने मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बना रखा है, यहाँ देखो। ये देखो एक गन है, दिस ए गन स्टूडेंट, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, गन, इसके अंदर एक बुलेट है स्टूडेंट, बुलेट है। आपके पास स्टूडेंट गन है, गन से मैं क्या करता हूं, इसके अंदर बुलेट है। जब मैं ये दबा दूंगा बटन तो मैं बुलेट को शूट करूंगा, क्या होगा फिर? व्हाट विल हैपन स्टूडेंट? व्हाट विल हैपन? सी व्हाट विल हैपन स्टूडेंट, अगर मैंने गन में से क्या करूंगा, शूट कर दी बुलेट। तो कोई ऐसी चीज बताओ कि जब जब तुमने देखा किसी को गन गन चलाते देखा, कभी शूटिंग करते देखा? बोलो। जब बुलेट आगे जाती है तो गन क्या रिकॉइल करती है या नहीं करती है, बताओ। बोलो, गन रिकॉइल करती है क्या? यस और नो? बोलो। आपने इसमें से बुलेट चलाई है स्टूडेंट, वो तो आगे चले गई और गन को पीछे एक धक्का लगता है, थोड़ा सा पीछे पीछे झटका लगता है। बोलो यस और नो, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो ये रिकॉइल क्यों हुई है? देखो, हम ये कह रहे हैं कि बुलेट तो बहुत आगे चली जाती है लेकिन गन थोड़ी ही रिकॉइल करती है। वो भी हम बताएंगे रीजन उसका क्या है, क्योंकि गन का मास बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट्स। द मास ऑफ गन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू मास ऑफ द बुलेट। लेकिन जो मोमेंटम होती है स्टूडेंट बिफोर शूटिंग और आफ्टर शूटिंग, वो हमेशा सेम होती है। मैं ये कह रहा हूं, द मोमेंटम ऑफ द गन, मोमेंटम किस किस की है, एक इस गन में क्या क्या चीजें हैं? दो चीजें, मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट, दो चीजें हैं ना, गन और बुलेट दोनों चीजें हैं। बिफोर बिफोर शूटिंग, बिफोर शूटिंग, जब शूटिंग नहीं की तो गन और बुलेट दोनों रेस्ट पर थी। ये रेस्ट पर था, क्या थी? रेस्ट पर थी, रुकी हुई थी। बोलो, रेस्ट पर थी ना, मेरे हाथ में गन थी तो चल थोड़ी रही थी वो, उसके अंदर बुलेट भी थी। बोलो यस और नो? तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? देखो, एक गन है, एक बुलेट है, ये मेरे पास इसके अंदर है, ये रेस्ट पर है बिफोर शूटिंग, क्या है? एट रेस्ट। जब मैंने फायर कर दिया स्टूडेंट तो क्या हुआ? बुलेट तो आगे चले गई आफ्टर शूटिंग, यहां पे मैं दिखा रहा हूं आफ्टर शूटिंग, तो बुलेट तो आगे चले गई और गन पीछे चले गई, गन रिकॉइल कर गई। तो आफ्टर शूटिंग भी जो मोमेंटम ऑफ द गन होगी, मैं कह रहा हूं आफ्टर शूटिंग, तो वो भी दोनों इक्वल होंगी। मोमेंटम ऑफ क्या क्या है मेरे पास, गन प्लस बुलेट। आफ्टर शूटिंग ये दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टूडेंट बताओ, ये दोनों बराबर होंगी? ये 1 और 2 इक्वल होंगे, यस और नो? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। 1 और 2 इक्वल होंगे? मैं कह रहा हूं 1 इज इक्वल टू 2, Yes, sir. यस और नो? तो इसी को ही तो बोला हमने, अभी प्रूव किया है। ये क्या प्रूव किया हमने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टूडेंट्स, कि गन और बुलेट की मोमेंटम पहले जितनी थी चलने के बाद भी उतनी रहेगी। लेकिन कैसे पता लगा? बुलेट तो आगे चले गई
और गन पीछे रिकॉइल कर गई, गन पीछे क्या रिकॉइल कर गई। तो देखो मैं ये कह रहा हूं कि लेट मी से मास ऑफ गन जो है वो m है और मास ऑफ बुलेट है मेरा, बुलेट तो छोटी होती है ना गन से, बुलेट छोटी होती है, स्मॉल होती है, मैं कह रहा हूं स्मॉल m है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं जब स्टार्टिंग में दोनों रेस्ट पे थे, एट रेस्ट थे बिगिनिंग में, बिफोर कुलियन क्या थे, ये रेस्ट पर, तो इसकी वेलोसिटी भी, गन की वेलोसिटी भी जीरो, गन की वेलोसिटी भी जीरो और बुलेट की वेलोसिटी भी जीरो। रेस्ट पर क्या होती है वेलोसिटी, जीरो। तो इनकी मोमेंटम कितनी हो गई बिफोर कुलियन, मास इनटू वेलोसिटी, एंड इसकी कितनी हुई, मास इनटू वेलोसिटी जीरो। तो रेस्ट पर इनकी इनकी टोटल मोमेंटम कितनी है, जीरो। तो जब ये रेस्ट पर है स्टूडेंट्स, इनकी टोटल मोमेंटम कितनी है, जीरो। बोलो यस और नो, बोलो मैंने गलत Yes, किया है। sir. और No, आफ्टर, sir. अब मतलब शूटिंग, बिफोर शूटिंग है यहाँ पर, इसको शूटिंग कर लेते हैं, गन चल रही है ना। आफ्टर शूटिंग क्या होगा, आफ्टर शूटिंग मान लो, आफ्टर शूटिंग जो गन की वेलोसिटी है वो v है, गन की वेलोसिटी कितनी है, v। और मान लो बुलेट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है आफ्टर शूटिंग, स्मॉल v। तो ये बुलेट की है। तो अब मोमेंटम, टोटल मोमेंटम कितनी बनी, वो बन गई m इंटू वी प्लस स्मॉल m इंटू वी, ठीक है। ये शुरू में जीरो थी तो ये भी जीरो होनी चाहिए, बताओ यस और नो। आफ्टर शूटिंग भी ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द, कौन सा लॉ लगा रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका क्या फायदा होता है, एक फार्मूला बन रहा है स्टूडेंट, इस फार्मूले से ये पता लग रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं कि एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी। तो अगर मेरे को बुलेट की वेलोसिटी पता हो, मास पता हो स्टूडेंट्स, तो ये बड़ा मास है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ v क्या है, रिकॉयल वेलोसिटी। तो v की वैल्यू कितनी हुई, माइनस एम वी बाई एम। ये फार्मूला बन गया एक, इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करूंगा। इस v को क्या बोलते हैं, ये जो v क्या है स्टूडेंट, ये रिकॉयल वेलोसिटी है, किसकी, गन की। तो गन कितने डिस्टेंस पीछे आएगी, कितनी वेलोसिटी गन की होगी, वो यहां से मैं निकाल सकता हूं। बोलो समझ में आया, नोट कर लो सारा, फिर आगे चलता हूं। पहले इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, इनको नोट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, नोट कर लो। After you have noted down, then I will proceed further, students. देखो जब एक बैलून को तुमने, एक बैलून में तुमने हवा भर दी और जब वो हवा छोड़ते हो तो क्या होता है, तुमने देखा होगा बैलून आगे की तरफ जाता है और हवा के पीछे की तरफ जाती है, एयर निकलती है बैलून से। तो वो एयर escapes out and when air comes out it has a momentum students। और तो जो मोमेंटम बिफोर थी और जो आफ्टर थी वो हमेशा इक्वल होंगी, मतलब जैसे गन रिकॉइल की है, इसी तरह से ये भी एक एग्जांपल है, एयर फील्ड बैलून। तो एयर फील्ड बैलून के बारे में भी हम बता सकते हैं स्टूडेंट, ये सब एग्जांपल हमने लिए, ये सब हमने एग्जांपल आपको दिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल दिए यहाँ पर, एग्जांपल दिए एयर फील्ड बैलून स्टूडेंट। वो भी जो जब बैलून में से हवा निकलती है तो क्या होता है, बैलून आगे और एयर पीछे की तरफ जाती है, तो ये भी मोमेंटम कंजर्व रहती है मोमेंटम स्टूडेंट बिफोर एंड आफ्टर। बैलून मूव्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द एयर रशिंग आउट।
देखा है, बैलून और एयर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। जब कोई सैटेलाइट या रॉकेट लॉन्च होता है स्टूडेंट, तो रॉकेट ऊपर जाता है, गैस पीछे की तरफ से निकलती है, तो जो रॉकेट की मोमेंटम है स्टूडेंट बिफोर एंड आफ्टर कंजर्व रहेगी। तो इसीलिए ही जो जो नीचे से गैस निकलती है और ऊपर की तरफ वो जाता है, दोनों का सम जो है मोमेंटम आफ्टर और बिफोर दोनों की सेम रहेगी, इसीलिए वो रॉकेट ऊपर उड़ जाता है। ये सब थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ही एग्जांपल्स हैं, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम डिराइव किया है स्टूडेंट्स। एनी डाउट? बताओ, कोई डाउट है आप इसमें? नोट कर लिया? आगे चलूं? Yes, sir. ओके, थैंक यू फॉर सेइंग यस। अब एक न्यूमेरिकल आ गया स्टूडेंट एग्जाम में, सीधा क्वेश्चन आपके सामने देखो स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बताओ। अब इस क्वेश्चन में आपको हमने क्वेश्चन दिया है, वो कह रहा है बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from pistol of mass. What is the recoil velocity? निकालो, 1 मिनट का वक्त मिलेगा, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। Your time starts now, students. You have 1 to 2 minutes to solve this question. तुम इसको सॉल्व करो, फिर मैं इसका आंसर करता हूँ। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, उसी को यूज करना है स्टूडेंट, उसी के फार्मूले को यूज करना है जो मैंने अभी बताया था। कौन सा बताया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसका यूज करके क्वेश्चन का आंसर निकालना है स्टूडेंट। आपके पास मिले हैं 1 या 2 मिनट। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे स्टूडेंट्स। मैं कह रहा हूं एक बुलेट है, ठीक है, आपके पास स्टूडेंट एक बुलेट है। मैं कह रहा हूं मास ऑफ द बुलेट कितना दे रखा? मास ऑफ द बुलेट बताओ। 20 ग्राम, ठीक है जी। और गन है एक, पिस्टल है, चलो पिस्टल है, तो मास ऑफ द पिस्टल कितना है स्टूडेंट? व्हाट इज द मास ऑफ पिस्टल? कितना कह रहा है? 2 किलोग्राम। तो इसका मास तो ग्राम में, इसका किलोग्राम है, इसको भी फिर किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, कितना आएगा फिर? 20/1000 0.02 किलोग्राम आ गया, ठीक है। मास ऑफ द बुलेट हमें पता है स्टूडेंट्स, मास ऑफ द पिस्टल भी हमें पता है, ठीक है। इज फायर्ड, ठीक है, बुलेट हॉरिजॉन्टली फायर्ड हुई, हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रखी है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट? इज हाउ मच स्टूडेंट? बुलेट की वेलोसिटी कितनी दी है आपको? कितनी वेलोसिटी से बुलेट निकली है? 150 मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द रिकॉयल वेलोसिटी? रिकॉयल वेलोसिटी क्या होती है? गन पीछे जाएगी, बुलेट आगे जाएगी, तो ये वेलोसिटी ऑफ द गन निकालनी है अभी, ये मेरे को नहीं पता। तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। देखो कि पहले ये बताओ कि पहले बुलेट और गन दोनों रेस्ट पे थे बिफोर फायरिंग। बिफोर फायरिंग क्या थी? गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट। बोलो सही है गलत है?
तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? बताओ कितनी है इनिशियल वेलोसिटी दोनों की? 0। जब कोई चीज रेस्ट पर होती है इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0। तो मोमेंटम निकालनी है बुलेट की। देखो बिफोर फायरिंग स्टूडेंट्स मोमेंटम कितनी आई बुलेट की? बुलेट कितनी आएगी? मास इनटू वेलोसिटी होती है। बुलेट का मास कितना है? बुलेट का मास 0.02 है। वेलोसिटी कितनी है? 0। और इसी तरह गन की कितनी आएगी मोमेंटम? ये P1, ये P2। गन की मोमेंटम कितनी आएगी? उसका मास 2 kg है लेकिन वेलोसिटी 0 है। तो बिफोर फायरिंग बताओ, बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम कितनी आएगी? P1 प्लस P2 0। बोलो यहां तक मैंने ठीक किया गलत किया? जल्दी बताओ। यस सर, सही है। तो जब फायरिंग से पहले क्या हुआ स्टूडेंट की मोमेंटम 0 है। अब आफ्टर फायरिंग निकालते हैं। आफ्टर फायरिंग बुलेट की वेलोसिटी तो दे रखी है लेकिन गन की v है। तो आफ्टर फायरिंग क्या होगा? तो टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या होगी? बताओ कि मास ऑफ द बुलेट कितना है? 0.02 kg। और इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है बुलेट की? 150। प्लस गन का क्या है? मास 2 kg। और इसकी वेलोसिटी मुझे पता ही नहीं निकालनी है। तो ये दोनों इक्वल होंगी। बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? मोमेंटम बिफोर फायरिंग मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, यस और नो? जल्दी बताओ।